and welcome to learning session number 1 of chapter number 3, which is life processes in living organisms part 2. Okay, this is the chapter of your science 2 textbook. So in this learning session we are only going to look at introduction. Okay, we are not actually going to start any main topic in this chapter today. The words we are going to learn today are gamete, zygote, identical. Okay, gamete, zygote and identical. So we're going to begin with exploring these 4 can you recall type of questions. Okay, so I'm going to wait for 5 seconds. I want you all to pause the videos in those 5 seconds and try to find the answers to all 4 of these questions. Okay, so I'm going to wait for 5 seconds. Okay, I hope you all were able to answer at least 2 of these questions. Okay, so इसमें से 2 क्वेश्चन जो थे वो हम लोग ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ लिए, प्रीवियस चैप्टर में. So these 2 questions were first and third. What are the important life processes in living organisms? तो इसमें ये तो I think we had studied in just in the last learning session, which is part 8 of chapter 2. So one could be nutrition, not nutrition actually. One could be digestion, respiration, excretion. All these are important life processes, right? So we have already discussed this. So I'm not going to discuss the answer to question number 1. Then what are the main types of cell division? So there are 2 main types, right? एक होता है mitosis, दूसरा होता है meiosis. And what are the differences between them? So differences, again we have answered a question. Write the difference between mitosis and meiosis. हम लोग ने 2 columns बनाए थे और 2 columns में उनके differences लिखे थे. So again I'm not going to discuss the answer to question number 3. But ideally you all should have been able to answer both of these questions जब तुम लोग ने वीडियो पॉज किया था, because we had already seen the answers to these questions. Okay, so we're going to discuss the answers to the remaining questions, okay, which is 2 and 4. So question number 2, which life processes are essential for production of energy required by body? Essential यानी एकदम important है किसके लिए? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो हमारे बॉडी को जरूरत होती है. सो फर्स्ट इज न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन का डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम देखा था, राइट? न्यूट्रिशन इज इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जाना, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन. वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं? It could be proteins, it could be carbohydrates, it could be lipids, etc. Okay. Next, respiration. Why is respiration important? Respiration भी again there are 2 types of respiration, right? एक है body level पे respiration, दूसरा है cell level पे respiration. Body level पे respiration क्या है? Exchange of oxygen and carbon dioxide between the body and its surroundings. Okay, that is body level पे respiration. What is cellular respiration then? Cellular respiration is the oxidation of foodstuff to get energy required for the body. So energy respiration से ही मिलने वाली है. So nutrition, respiration, और फिर समझो तुम लोग को न्यूट्रिशन भी मिल गया, रेस्पिरेशन भी मिल गया, बट वो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है. बॉडी में जितने भी सेल्स है सबको वो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, राइट? अगर सबको नहीं मिला तो क्या फायदा उस एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स का? सो सर्कुलेशन इज इंपॉर्टेंट सो दैट एवरीथिंग इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट आवर बॉडी. ओके, सो दैट इज व्हाई दीज 3 life processes are essential, very important for production of energy. Next, what is the role of chromosomes in cell division? Chromosomes का क्या importance है cell division में? So in cell divisions, chromosomes carry genetic material or genetic information from parent to daughter cells. Okay, so DNA is made up of, chromosomes is made up of DNA. DNA is made up of genes, right? और genes में genetic information होती है, जैसे कि बाल स्ट्रेट होने चाहिए या कर्ली होने चाहिए, आंखों का कलर ब्लू होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, ब्राउन होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए. ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन आवर जीन्स एंड जीन्स मेकअप डीएनए, डीएनए मेकअप क्रोमोसोम्स. सो सब कुछ क्रोमोसोम्स में होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और वो पास किया जाता है फ्रॉम पेरेंट सेल टू डॉटर सेल इन सेल डिवीजन. ओके, दैट्स द रोल क्रोमोसोम इज प्लेइंग इन सेल डिवीजन. ओके, let's look into reproduction. Okay, give me a minute. Okay, so reproduction is an important life process in living organisms. Okay, so it is an important life process. Next, reproduction does not help the organism to remain alive, but it helps to maintain the continuity of species of that organism. So कोई भी organism को जिंदा रहना है उसके लिए reproduction की जरूरत नहीं है, but अगर वो species को continue करना है, maintain करना है उस species को throughout time,
then reproduction is important. Okay, formation of new organism of same species by earlier existing organism is called reproduction. Okay, so reproduction का definition हो गया. What is definition of reproduction? Formation of new organism, एक नया organism बन जाना of same species by earlier existing organism. पहले से एक organism exist कर रहा था, उस organism में से एक नया organism बन जाना जो same species का होगा. That is known as reproduction. So this is the definition of reproduction. Next, it is also one of the various reasons responsible for evolution of each species. So what is evolution? So theory of evolution बोलती है कि हम आज जो कुछ भी living organisms है पूरे अर्थ पे, all those have evolved यानी छोटे छोटे उनमें changes होते गए with time, और natural selection से जो environment के लिए ज्यादा suitable था, जो ज्यादा अच्छे थे environment के लिए, वो अलग अलग टाइप के वेरिएशंस बच गए, और जो कुछ भी अच्छे नहीं थे वेरिएशंस, जो कुछ भी डिफरेंट वेरिएशन थी, डाइवर्सिटी थी, जो अच्छे से कोप अप नहीं कर पाई अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, वो दे स्टॉप्ड एग्जिस्टिंग. ओके, वो लोग ज्यादा रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए, वो जल्दी मर गए. बट जो लोग अच्छे से Okay, so the first point is reproduction is an important life process in living organisms. Reproduction एक काफी important life process है living organisms के लिए. Next, reproduction does not help the organism to remain alive. तो जिंदा रहने में reproduction help नहीं करने वाला है. तो किसमें help करेगा? It helps to maintain the continuity of species of that organism. अगर वो species को continue करना है, species को खत्म नहीं होना है, वो चलते रहना चाहिए वो स्पीशीज, उसके लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है. कोई भी एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. Okay, so what is the definition of reproduction? So the third point is definition of reproduction. Okay, so formation of new organism of same species. एक नया organism बनना जो same species का है by earlier existing organism. पहले से कोई organism exist कर रहा था, उसमें से नया organism form होना जो same species का है. This is known as reproduction. Okay, so this is the definition of reproduction. Point number 3. Next, it is also one of the various reasons responsible for evolution of each species. So what is evolution? Evolution basically theory of evolution क्या बोलते हैं कि आज जितने भी living organisms present है वो evolve हुए हैं. तो पहले जो अलग अलग आज जो अलग अलग वैरायटी मिलती है वो पहले सब एक ही थे. ओके, फिर सब में थोड़े थोड़े वेरिएशंस होते गए, और जो कुछ भी वेरिएशंस अच्छे थे, एनवायरनमेंट को सूटेबल थे, वो लोग बच गए, और जो अच्छे वेरिएशंस नहीं थे वो मर गए. ओके, सो जो अच्छे वेरिएशंस थे those have now lived on for longer time, and उस organism का population ज्यादा है. Okay, so evolution is very important to get very good quality of living organism जो काफी easily adapt कर सकते हैं अपने environments को. Okay, so ये जो theory of evolution है, theory of evolution या फिर evolution के लिए reproduction काफी important reason है. अगर reproduction नहीं होगा तो इवॉल्व नहीं कर पाएंगे स्पीशीज. जैसा था 10,000 साल पहले वैसे ही होता, तो आज हम लोग भी मंकीज जैसे होते हैं. हम लोग मंकीज में से इवॉल्व होके ह्यूमन बींग्स नहीं बनते. ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन अकर्स मेनली बाय टू मेथड्स. दो मेथड से रिप्रोडक्शन होता है. ओके, फर्स्ट मेथड इज एसेक्सुअल मेथड एंड सेकंड मेथड इज सेक्सुअल मेथड. ओके, एसेक्सुअल मेथड में सिर्फ एक ही पेरेंट होगा, सेक्सुअल मेथड में देयर विल बी टू पेरेंट्स. ओके, so that's reproduction for y'all. You need not copy this slide because everything I've taken from your textbook, so you can just read all these points from your textbook. Okay, again you're going to try to answer these four can you tell type of questions. Okay, so let us see the answers of these questions one by one. So question number 1, what do you mean by maintenance of species? तो इसमें एक point था, right? कहा गया maintain the continuity of species. So maintaining the continuity of species का मतलब क्या है, वही हमारा first question है. So during sexual reproduction, genetic material of two individuals is combined, thus offsprings produced are genetically different from their parents. So sexual reproduction में जो again sexual reproduction में there are two parents, right? एक मेल होगा एक फीमेल होगा. So जो दो पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होके ऑफस्प्रिंग बनता है. ऑफस्प्रिंग यानी
बेसिकली वो कंबाइन होके जो नया इंडिविजुअल बन रहा है, नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, उसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। ओके, सो ऑफस्प्रिंग में दोनों पेरेंट्स के जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होके बने हैं। सो जो ऑफस्प्रिंग का जीन होगा वो पेरेंट से अलग होगा। दैट्स योर पॉइंट नंबर 1. During sexual reproduction, genetic material of two individuals is combined. Thus, offsprings produced are genetically different from their parents. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है. Such genetic variations give rise to diversity. Okay, so क्योंकि अभी ये कंबाइन हो रहा है, बहुत अलग अलग टाइप से कंबाइन हो सकता है, राइट? सो जितने ज्यादा कॉम्बिनेशंस बनेंगे उतने ज्यादा वेरिएशंस मिलेंगे. वेरिएशंस यानी क्या, कितने अलग अलग प्रॉपर्टीज है, कितने अलग अलग प्रॉपर्टीज है एक ऑर्गेनिज्म के, दोज आर नोन एज वेरिएशंस. ओके, और वो सब सेम स्पीशीज के होंगे. एंड इट गिव्स राइज टू डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी यानी बहुत अलग अलग टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहना, एक साथ मिलना, दैट इज नोन एज डाइवर्सिटी. सो ये वेरिएशंस किसकी वजह से आ जाए? बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल कंबाइन होने वाला है, तो ऑफस्प्रिंग का जीन्स अलग होने वाला है पेरेंट्स से, इसलिए वेरिएशंस होंगे. वेरिएशंस की वजह से डाइवर्सिटी मिलेगी. ओके, genetic variation enables organisms to adjust with changing environment. Okay, so अगर environment change हो रहा है और चार अलग अलग टाइप के ऑफस्प्रिंग्स बने, एक बहुत कोल्ड वेदर के लिए, एक बहुत हॉट वेदर के लिए, एक बहुत रेनी सीजन के लिए और एक बहुत ड्राई सीजन के लिए, तो हमारे पास चार अलग अलग वेरिएशंस है एक ही ऑर्गेनिजम्स के. सो जैसे हमारा एनवायरमेंट चेंज होते रहेगा उसमें से कोई ना कोई एक ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे से अपना लाइफ जी पाएगा और वही लाइफ को फिर बाद में रिप्रोड्यूस हो के वो उस टाइप का जो ऑर्गेनिज्म है उसका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा. ओके, सो जेनेटिक वेरिएशन अनेबल्स यानी इट अनेबल्स यानी इट्स मेड ऑफ द वर्ड एबल. एबल यानी एबिलिटी. ओके, तो जेनेटिक वेरिएशन की वजह से ऑर्गेनिजम्स को एडजस्ट करने का मौका मिल जाता है अपने चेंज होने वाले एनवायरमेंट से. Thus, it maintains the species by preventing their extinction. So, कितना भी चेंज हो जाए एनवायरमेंट, अलग अलग टाइप्स के वेरिएशंस है, तो कोई ना कोई एक वेरिएशन तो उसको सरवाइव कर देगा, इसलिए एक्सटिंक्शन नहीं हो. एक्सटिंक्शन यानी वो स्पीशीज ही खत्म हो जाना. ओके, फॉर एग्जांपल टाइगर्स की स्पीशीज जो है, इट्स वेरी नियर टू एक्सटिंक्शन, वो जल्दी मरने वाले और पूरे अर्थ में टाइगर नहीं मिलेंगे फिर. बट अगर बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इतने अलग अलग टाइप्स के टाइगर बनेंगे कि जो कुछ भी चेंज हो रहा है उनका एनवायरमेंट, कोई ना कोई ऐसा टाइगर बनेगा जो उस एनवायरमेंट में जी पाएगा और फिर बाद में वो रिप्रोड्यूस होके उनका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा. ओके, दैट्स योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट, question number 2, whether the new organism is genetically exactly similar to the earlier one that has produced it. Okay, so ये जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसके जीन्स और जो बना रहा है जिस ऑर्गेनिज्म से वो नया ऑर्गेनिज्म बना, उन दोनों के जीन्स सेम रहने वाले क्या, एग्जैक्टली सेम होने वाले क्या, ये क्वेश्चन पूछा है. सो देयर आर 2 पॉइंट्स टू द आंसर. In case of asexual reproduction, the new organism formed is genetically identical. Identical यानी exactly same. Okay, identical यानी exactly same. So genetically identical to its parent. New organism के जो genes होंगे वो exactly same होंगे parent के genes से. किसमें? Asexual reproduction में. Whereas in sexual reproduction, genetic constitution of offsprings is different. ओके, सो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है क्या क्या है उसमें. ओके, कौन से टाइप के जीन्स है उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. सो ऑफस्प्रिंग यानी मैंने क्या बताया, वो जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म में से उसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं. ओके, और जिसमें से वो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है उसको पेरेंट बोलते हैं. सो जो ऑफस्प्रिंग का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो जीन्स है और नए ऑर्गेनिज्म में, वो पेरेंट के जीन से अलग होता है. ओके, इट्स डिफरेंट. Why? Due to recombination of genes from both parents. So sexual reproduction में दो पेरेंट्स होते हैं, राइट? सो एक पेरेंट का और दूसरा पेरेंट का, दोनों के जीन्स कंबाइन होके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे. किस तरीके से कंबाइन हो सकते हैं, राइट? सो अलग अलग कॉम्बिनेशंस की वजह से वो जो ऑफस्प्रिंग के जीन्स होंगे वो पेरेंट के जीन से अलग होंगे. ओके, सो दैट्स योर आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2. ए सेक्सुअल में एग्जैक्टली सेम होंगे, सेक्सुअल में अलग होंगे ऑफस्प्रिंग के जीन्स एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स के जीन्स. नेक्स्ट, who determines whether the two organisms of a species will be exactly similar or not. So दो ऑर्गेनिज्म एक स्पीशीज के एकदम सेम टू सेम रहेंगे या थोड़ा थोड़ा अलग अलग होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? फॉर एग्जांपल, इफ यू सी डॉग्स के स्पीशीज में और अदर ह्यूमन के स्पीशीज में
ऑल ह्यूमंस बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, बट फिर भी हम लोग में कितना वेरिएशन है, किसका हाइट ज्यादा होता है, किसी का हाइट कम होता है, स्किन का कलर अलग अलग होता है, आई के कलर्स अलग अलग होते हैं, बाल कभी कभी स्ट्रेट होते हैं, बाल कभी कभी कर्ली होते हैं, देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेरिएशंस, राइट, अलग अलग होते हैं सेम स्पीशीज के होने के बाद भी। और कुछ कुछ स्पीशीज में सारे ऑर्गेनिज्म सेम होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू सी टाइगर्स, टाइगर्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा, सारे टाइगर ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं एक दूसरे के। सो बट फिर भी उसमें थोड़ा सा तो चेंज होता है, कुछ कुछ एग्जैक्टली सेम होते हैं। सो क्या डिसाइड करेगा कि कौन से ऑर्गेनिजम्स एक स्पीशीज के एग्जैक्टली सेम होंगे या थोड़े थोड़े अलग होंगे? ओके, सो द आंसर इज the similarity of difference between organisms of a species depends upon whether these individuals are formed by sexual reproduction or asexual reproduction. Okay, so अगर asexual reproduction हो रहा है तो उसमें exactly same genes होते हैं, तो सारे organisms एकदम same लगेंगे। तो जिसमें sexual reproduction होता है, दो पेरेंट्स का जीन्स कंबाइन होने वाला है और अलग अलग टाइप से कंबाइन होने वाला, सो उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होगा, राइट। सो ह्यूमंस रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सो इसलिए हमारे ह्यूमंस में बहुत सारे अलग अलग वैरायटी मिलती है हम लोग को। बट इफ यू सी फॉर एग्जांपल एमीबा, ओके, और सम टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ये लोग कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअली। तो उनमें सारे बैक्टीरिया एक टाइप का एक स्पीशीज सेम ही दिखेगा, बहुत अलग अलग नहीं दिखेगा। ओके, लेट अस मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 4, what is the relationship between the cell division and formation of new organism of same species by earlier existing organism? Okay, cell division में और formation of new organism of same species में क्या relationship है? Okay, so it's a long answer, यहाँ पे 2 points और next slide पे बाकी के remaining points है। So first point, cell division by mitosis increases the number of cell, राइट। सो माइटोसिस में एग्जैक्टली सेम टाइप का ऑर्गेनिज्म मिलता है, राइट। इसलिए अगर किसी भी सेल्स के नंबर बढ़ाने हैं, एक सेल के 2 करने हैं, 2 सेल के 10 करने हैं, 10 सेल के 1000 करने हैं, तो उसमें क्या कौन सा प्रोसेस यूज होगा? माइटोसिस, क्योंकि माइटोसिस क्रिएट्स एग्जैक्ट सेम कॉपीज। ओके, since the cell copies its DNA before division, each daughter cell receives the same genetic material. So mitosis में जो first step है इंटरफेस में डीएनए की कॉपी बन जाते हैं। ओके, सो इंटरफेस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस में, वो डबल हो जाते हैं, यानी क्या हो रहा है? डीएनए का कॉपी बन रहा है। सो डिवीजन होने से पहले डीएनए का कॉपी बन जाता है। सो ईच डॉटर रिसीव द सेम जेनेटिक मटेरियल। सो माइटोसिस में जो दो अलग अलग सेल्स बनते हैं, दोनों को सेम जीन्स और सेम जेनेटिक मटेरियल मिलता है, क्योंकि पहले कॉपी हो जाता है इंटरफेस में। Thus, single organisms can reproduce asexually by mitosis to form new organisms of the same species. Okay, so अगर एक ही सेल वाला ऑर्गेनिज्म होगा, ओके, एक ही सेल वाला, सो वो लोग एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करोगे तो एकदम सेम स्पीशीज का तुम्हें ऑर्गेनिज्म मिलेगा, राइट। So it will lead to formation of new species of the same organism. किससे? Mitosis से। Next point, in case of multicellular organisms undergoing sexual reproduction, the number of chromosomes in the parent cell is reduced by half by meiosis. Okay, so meiosis में क्या होता है? Meiosis generally gamete formation के लिए होता है। Gamete क्या है? Again, gamete is that reproductive cell जो दूसरे ऑपोजिट सेक्स से कंबाइन होके एक नया ऑर्गेनिज्म बनने वाला है। ओके, सो नया ऑर्गेनिज्म क्या होता है? सो द फर्स्ट स्टेप इन बिकमिंग दैट न्यू ऑर्गेनिज्म इज जाइगोट फॉर्मेशन। ओके, सो दो गैमेट्स कंबाइन होके जाइगोट बनने वाले हैं। सो ये कौन से प्रोसेस से फॉर्म होते हैं गैमेट्स? मियोसिस से, राइट। और मियोसिस में क्रोमोसोम का जो नंबर है वो आधा हो जाता है, राइट। सो these gametes unite on fertilization to form a zygote. So जो meiosis में जो meiosis से नए सेल्स बनते हैं, उनमें क्रोमोसोम्स के नंबर आधे होते हैं, reduced to half, और फिर बाद में ये गैमेट्स यूनाइट हो जाते हैं। यूनाइट यानी साथ में आना, on fertilization. What is fertilization? Fertilization is just the process of gametes coming together, okay, to form a zygote. Again, what is zygote? दो गैमेट्स कंबाइन होने के बाद जो मिलता है, that is zygote. These gametes unite on fertilization to form a zygote that contains same chromosome number as that of the parents. Okay, so meiosis में एक सेल से समझो
4 सेल्स बन गए। ओके, तो जो 4 सेल्स बनते हैं उनमें समझो इसमें अगर 48 क्रोमोसोम्स है पेरेंट सेल में, तो डॉटर सेल में 48 का आधा 24 क्रोमोसोम्स होंगे। बट ये भी दो 28 क्रोमोसोम्स वाले एक दूसरे से कंबाइन होंगे, सो वापस 24 प्लस 24 28 हो जाएगा। ओके, आई रिपीट दैट वंस मोर। समझो मियोसिस में पेरेंट सेल के पास 48, ओके लेट मी increase the size of my face. Okay, so assume in meiosis the parent cell has 48 chromosomes. Okay, 48 chromosomes है। so meiosis के बाद 4 सेल्स मिलेंगे और 4 सेल्स में 48 नहीं, उसका आधा होगा, 48 का आधा 24, तो ये 4 सेल्स में 24 क्रोमोसोम्स होंगे। अभी जो दो ये 4 24 क्रोमोसोम्स मिले उनमें से दो वापस कंबाइन हो सकते हैं, राइट। सो ऐसे दो सेल्स कंबाइन हो गए, दो गैमेट्स कंबाइन हो गए, एक में 24 एक में 24, दोनों कंबाइन होके वापस 48 बन जाएगा, राइट। सो वापस पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स थे उतने ही बन गए आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ओके, गैमेट्स में आधे आधे क्रोमोसोम्स होते हैं, पर जब दो गैमेट्स कंबाइन हो जाते हैं तब वो जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट बनने के बाद वापस पेरेंट में जितने क्रोमोसोम्स थे उतने ही बन जाते हैं वापस। ओके, okay, let me reduce the size of my face again. Yes, so that was your point number D. A new organism similar to the earlier existing one is formed by development of zygote. तो जाइगोट से एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है जो सिमिलर है। अगेन यहाँ पे वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, सिमिलर, सिमिलर यानी एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा बहुत मैचिंग होगा बट पूरी तरीके से मैच नहीं होगा। और आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली सेम, सो आइडेंटिकल एंड सिमिलर बोथ आर ऑपोजिट्स ऑफ ईच अदर। सो आइडेंटिकल में एग्जैक्टली सेम होगा, सिमिलर में थोड़ा बहुत सेम होगा, थोड़ा बहुत अलग होगा। सो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट में वो जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो पेरेंट के एकदम सिमिलर होता है, नॉट एग्जैक्टली सेम बट सिमिलर। The zygote develops by undergoing cell division by mitosis। तो एक बार जाइगोट फॉर्म हो गया, सो जाइगोट के जो जाइगोट कैसे फॉर्म हो रहा है, मियोसिस के बाद जो गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं उसको कंबाइन होकर जाइगोट बन रहा है। फिर जाइगोट वापस कैसे डेवलप होगा, जाइगोट फिर बाद में माइटोसिस से डेवलप होगा। ओके, so the zygote develops by undergoing cell division by mitosis, and hence cell division is the basis of all forms of reproduction. Cell division is very important so that नए organisms बन जाए for all types of organisms, okay, and all types of reproduction। कोई भी टाइप का रिप्रोडक्शन होने दो, सेल डिवीजन तो उसमें होने ही वाला, so that's why it is important। Okay, so that's your answer to question number 4। ओके, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है ए एंड बी, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है सी डी एंड ई, एंड फाइनली कंक्लूजन। ओके, so that's it for this learning session। what are the new words we learned? The new words we learned were first gamete। gamete क्या है? haploid cells। अगेन haploid क्या है? haploid एंड diploid हम लोग ने पढ़ा था राइट प्रीवियस चैप्टर में। डिप्लॉइड इज जिसमें क्रोमोसोम्स के दो सेट्स है, हैप्लॉइड यानी जिसमें क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही सेट है। ओके, सो गैमेट क्या है? हैप्लॉइड है, क्योंकि वो मियोसिस से बनते हैं राइट, गैमेट मियोसिस से बनते हैं। सो मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, इसलिए हैप्लॉइड सेल बन जाते हो। सो हैप्लॉइड सेल which can unite with another cell of opposite sex to form a zygote। गैमेट ऐसा एक सेल है जो दूसरे गैमेट से कंबाइन होकर फिर एक जाइगोट बन सकता है जो ऑपोजिट सेक्स का। व्हाट इज जाइगोट? डिप्लॉइड सेल ऑफ डिप्लॉइड सेल। अगेन यहाँ पे सेल 2 बार लिखा है मैंने गलती से। ओके, सो इट शुड बी ओनली वन, the cell the word cell should have been written only once। diploid cell that forms by combining two haploid cells। so दो haploid cells जिसमें एक एक सेट है क्रोमोसोम्स का, जब वो लोग साथ में मिल जाते हैं तो अभी डबल हो गया क्रोमोसोम का नंबर, सो अभी हैप्लॉइड का डिप्लॉइड हो गया। ओके, सो डिप्लॉइड सेल्स दैट फॉर्म बाय कंबाइनिंग टू हैप्लॉइड गैमेट्स उसको बोलेंगे जाइगोट। ओके, एंड आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली सेम। So that's it for this learning session, and I hope you all understood this learning session, and I'll see you all in the next learning session. So till then, peace.